Good morning, young learners. I hope you all are in the best of your health. And now I welcome you all back to your English class. Students, today we'll read about the second poetry, that is an elementary school classroom in a slum. And this poetry is written by Stephen Spender. Before starting with the poetry, students, let me tell you something about the poet Stephen Spender. His full name is Sir Stephen Harold Spender, was an English poet, novelist, and essayist whose work concentrated on theme of social injustice and the class struggle. He was born on 28th February 1909 and died on 16 July 1995 in London. In this poetry, Stephen Spender basically highlights the plight of the poor children of the rural school. And in fact, Spender states that about the sort of education that is given to these children hardly does any good. On the contrary, more focus is put on the deprived section of the society. Still, the government is doing good, but the kind of services provided to these children are highly questionable. Spender must believe that education is the only source that can transform the society. If the education doesn't transform and bring changes, then something is wrong with the system. So in this poetry, Spender highlights the main theme of social disparities and class inequalities. He presents the theme by talking of two different and incompatible worlds. First one, the world of the rich and the civilized, has nothing to do with the world of narrow lanes and cramped holes. The gap between these two worlds highlights social disparities and class inequalities. It is not only this, the poet expresses his ideological positions on government, economics, and education. In this poetry, he has explained about the children who are poor, undernourished, and no chances of progress till they bought in lap of nature. And this, the elementary school classroom in a slum, this poetry was published in the year 1964 in collected poems. He narrates the pity and pathetic condition of slum children. And now, students, before I start explaining with the paragraphs, first in a very simple and easy way, I would like to just give an example. As let me just give an example of, because in this the Spender has explained about the slum area of Tyrol's Valley, and in this he has explained about the pathetic condition of the children who are reading in the rural areas. So सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. Just you take an example of a elementary rural area school and an example of a good public schools.
So students, what the difference you notice between both the schools? Basically, this is what the glimpses this poetry is giving you about the condition prevailing in rural area of slum area of Tyrole's Valley. Basically, if you just think about, count on the facilities that are provided to the private schools and the elementary rural schools. Here see the word an elementary. So what is the meaning of elementary? Means the primary schools after 5th class. It comes under elementary schools. So जितने भी अपने private schools हैं, that they will, the children, they get a good atmosphere, they get a good environment in that, right? Just they are well to do, they are neat, clean, and moreover their जो primary needs हैं, they are fulfilled. And even if you just count on their education facilities, they have good teachers, good books, and moreover their economic and hygiene status is quite in a civilized way as we compare to the school in a slum area. For example, अगर जो भी स्कूल स्लम एरिया में, what you notice about that, आपने अगर कभी आप किसी स्लम एरिया में गए हो, अगर आपने वहाँ पे स्कूल देखा हो, तो स्टूडेंट्स आपने वहाँ पे क्या नोटिस किया है? आपने वहाँ पे नोटिस किया है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, एक बेसिकली आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल, ताकि जब मैं आपको पोइट्री पढ़ाऊँ यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट व्हेन आई एक्सप्लेन यू दिस पोइट्री. अगर आप वहाँ स्लम एरिया के स्कूल में देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यू विल सी, आई मीन नो प्रॉपर फैसिलिटीज़, नो प्रॉपर वेंटिलेशन, नो प्रॉपर लाइटनिंग, and moreover just they don't have good infrastructure as the students of private school gets when they just go to school. In a good reputed schools, students they get a furnished desks, proper class, proper ventilation, proper blackboards, and whatever the facilities you need, you just get all sort of facilities in a good and a reputed schools. But if we talk about the slum area में एक्चुअली क्या है, मतलब ठीक है टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि वो टीचर्स वो बच्चों पे उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए? या बच्चे जो वहाँ बैठे हैं, डू दे रियली लिसनिंग द टीचर? और यहाँ पर जब हम पढ़ाऊँगे आपको स्लम एरिया में, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनकी जो प्राइमरी नीड्स हैं एक्चुअली वही फुलफ़िल नहीं है. अगर आपने प्रॉपर हिरार्की सिस्टम देखा हो तो हिरार्की सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट जो बच्चों की या कोई भी एक इंसान है उसकी जो प्राइमरी नीड्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए. अब प्राइमरी नीड्स क्या है? दैट इज़ योर हंगर, थर्स्ट, क्लोथिंग, बिकॉज दीज थिंग्स गिव्स यू द इनर सेटिस्फैक्शन. For example, if you are feeling hungry, so what do you think? Will you be able to concentrate on your studies? I don't think so. So what is important, what is necessary? First, you need to just to eat something just to clear hunger, thirst. You have a good clothing. You must be healthy and mentally fit in order to just learn about the lessons. If you are not mentally fit, you are not healthy, then how would you be able to cope up with the class? So this is all the difference here I have explained you. So now students, in this poetry there are 4 paragraphs. So in this class I'm just going to explain you 2 paragraphs, and I want everyone, please listen carefully, and you just
वेल आई जस्ट टेल यू अबाउट सम ऑफ द फिगरेटिव स्पीच जिसको हम पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द लाइन. सो आई वॉन्ट यू टू प्लीज write somewhere so that when you read, when you go through this poetry, and when you face any problem, when you come across any problem, just you will able to clear it out. So now I'm just starting with the poetry. Far far from gusty waves, these children's faces. Now students, look at this line carefully. Far far from gusty waves. So यहाँ पे look the word gusty waves. Gusty क्या होता है? तूफानी, जोशीली, energetic. These children's faces. Basically if you look at the line, ये जो बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे वो हैं जो कि स्लम एरिया के बच्चे हैं. एंड इस फर्स्ट पैराग्राफ में बता रखा है अबाउट द स्टूडेंट्स एंड नरेट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, कि हाउ दीज स्टूडेंट्स आर, हाउ दे आर लुकिंग व्हेन दे आर सिटिंग इन देयर क्लासरूम्स. कहाँ है ये जो बच्चे बैठे हैं इस्लाम क्लास में, इस्लाम एरिया की टारोल्स वैली की क्लास में, वो उस जोश से, वो उत्साह से, उस एनर्जेटिक, उनके जो चेहरे हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम देयर. सी द वर्ड एफ एफ. इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स? हियर एफ एफ इज द एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड. और यहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है? दैट इज एलिट्रेशन. एंड इन दिस the poet wishes to convey that these children in elementary school of the slum are metamorphically far removed from the mainstream of life, freedom, and the prospect of promising future. Understood? So these children, they are far away from the life of freedom and the prospects of promising future. And like rootless weeds, the hair turned round their pallor. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रखा है like rootless weeds. अब कहाँ गया है? What do you mean by the weeds? Actually हम बोलते weeds होते हैं, they are the unwanted plants. Unwanted plants in the garden, unwanted plants जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, unwanted plants in the fields. और जहाँ पे जो फार्मर है, जब वो अपनी फार्मिंग करता है, तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स, जो वीड्स हैं, घास फूस, जो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, जस्ट ये उसके लिए मायने नहीं रखते हैं. वो एक्चुअली ही जस्ट टेक्स आउट दीज वीड्स फ्रॉम द गार्डन एंड फ्रॉम द फील्ड्स. सो उसी तरीके से लाइक दैट, लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे हैं, जो स्लम एरिया में ये बच्चे बैठे हैं, दे आर लाइक रूटलेस वीड्स. मीन्स हियर द इमेज ऑफ रूटलेस क्या शो कर रहा है? दैट मीन्स क्रिएटिंग अ डबल इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ नर्चरिंग एंड अनवांटेड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. एंड दे आर अनवांटेड फॉर दिस सोसाइटी. मतलब किसी को इनकी ज़रूरत नहीं है. दे ब्लॉट, उनकी सोसाइटी में एक ब्लॉट है, ये अनवांटेड है. दे डोंट हैव एनी स्टैंड एंड इन फैक्ट दे आर अनवांटेड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और यहाँ देखो बेटा, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? लाइक रूटलेस वीड्स. सिमिली है, राइट डाउन सिमिली. कहीं भी एज और लाइक अगर आपका आता है तो वहाँ पर हम फिगरेटिव स्पीच यूज़ करते हैं, सिमिली. The hair turned round their pallor. Now underline the word pallor. Pallor होता है pale face, pale और faded face. इसका मतलब है that means यहाँ पे जो उनके जो बच्चे बैठे हैं वो एक रूटलेस वीड की तरह हैं, अनवांटेड है सोसाइटी के लिए. देयर हेयर टॉन, उनके जो बाल हैं, राउंड देयर पहले उनके जो बाल है, जो हेयर है, वो अनकेप्ट है, वो डर्टी है.
और वो जो उनके जो हेयर हैं उन बच्चों के, दे आर राउंड देयर पैलर फेस, और उनके मतलब अनकॉम्ड हेयर है, और वो जो हेयर हैं वो उसके जो फेडिड फेस है, उनके पूरे फेडिड फेस पे राउंड देयर पैडिड फेस, मतलब वहाँ पे उनके मतलब दे आर मतलब ढंग से कॉम्ड नहीं है, फैले हुए हैं उनके पैलर फेस पे। इट मीन्स, और आप बेटा लिख लो कहीं पे, इट मीन्स दैट बोथ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड होपलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं कि दे हैव अ सॉर्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल बिकॉज दे लिव इन अ डर्टी एटमॉस्फियर। मतलब वो नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, दे जस्ट मतलब उनके जो हेयर है उनके हेयर कॉम नहीं है, एंड जो पूरे हेयर स्कैटर्ड है ओवर देयर फेडिड फेस, उनके फेस पेल है, फेडिड है, मुरझाए हुए हैं। और यहीं पे क्लास में एक देखो अलग अलग बच्चे बता रखे हैं कि इस्लाम एरिया में क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, क्या वाकई में जो बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ बैठे, डू दे रियली जस्ट गेटिंग व्हाट द टीचर इज टीचिंग टू देम, या जस्ट कभी हम बोलते हैं ना फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली समवेयर एल्स। तो देखिए इन्हीं में से द टॉल गर्ल विद हर विग्ड डाउन है, उसी क्लास में वहाँ पर एक गर्ल बैठी है एंड शी इज़ अ टॉल गर्ल मीन्स हम यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री क्लासरूम है। यहाँ पर टॉल का मतलब है शी इज़ टॉल इनफ टू बी ए स्टूडेंट ऑफ एलिमेंट्री क्लास, बहुत बड़ी है वो अपनी एज से। और यहाँ पे कह सकते हैं टॉल गर्ल वो सिटिंग देयर विथ हर वेग डाउन हेड, अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, वेग डाउन हेड। यहाँ पर ये मेटाफर यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ये किस चीज़ का मेटाफर यूज़ हुआ है बेटा, यहाँ क्या है, वेग डाउन हेड। अब यहाँ पे उसने हेड डाउन कर रखा है, मतलब शी इज़ ऑल्सो नॉट लिसनिंग टू द टीचर, शी इज़ नॉट स्टडिंग देयर इन द क्लास। बेसिकली यहाँ देखो आप रूटलेस वीड्स कहा है, अनवांटेड फॉर द सोसाइटी के लिए कहा है, टॉल गर्ल है, वेग डाउन हेड है। अब ये जो वेग डाउन हेड इसका मतलब क्या है, द वर्ल्ड ऑफ हर, जो जिस पोजीशन है उनकी जो सोसाइटी में, वो बड़ा ही शेम फील कर रही है। आप इसको लिख लोगे शेम जस्ट मीन्स अ होपलेसनेस, एंड इवन शी कांट बियर दिस शेम एंड शी जस्ट पुट हर हेड डाउन। और यहाँ पर ये आपको सिम्बलाइज कर दैट शी इज़ डिप्रेस्ड, शी इज़ सैड, मतलब उसकी जो ये पैथेटिक कंडीशन है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी है कि मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा व्हाट शी हैज़ टू डू। तो वो सैड है, वो डिप्रेस्ड है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास वेयर द क्लास इज गोइंग ऑन, एंड इन दैट वे इनफैक्ट कह सकते हो दे लैक अ सॉलिड फाउंडेशन टू बिल्ड देयर फ्यूचर। फिर वहीं पे द पेपर सीमिंग बॉय, अंडरलाइन करो बेटा, वहीं क्लास में एक लड़का बैठा है जो कि पेपर जैसा दुबला है। तो अगेन यहाँ पे कंपैरिजन है, दैट इज़ यहाँ पे लिख लो मेटाफर, ये बॉडी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थो बेटा आपकी जो लाइन थी टर्न्ड राउंड देयर पैलर फेस, ये भी मेटाफर है। द पेपर सीमिंग बॉय मतलब वहाँ क्लास में एक लड़का बैठा है जो कि बहुत ही पेपर जितना दुबला पतला है, पेपर जैसा थिन है, पतला है। अगेन पोएटिक डिवाइस लिख लो, फिगरेटिव स्पीच है, इट मीन्स मेटाफर। एंड पेपर सीमिंग बॉय मीनिंग लिख लीजिए, इट मीन्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही दुबला पतला है। एंड इन दिस यू कैन से राइट डाउन कि आप कह सकते हो कि माल नरिश्ड है वो। विद रैट्स आइज, ये इतना दुबला पतला लड़का है जैसे उसकी जो आँख, जैसे रैट होता है, रैट की आंखें बाहर की तरफ होती है, और एक्चुअली रैट क्या है, वो बड़े ही ध्यान से यहाँ वहाँ देखता है। दैट मीन्स ही लुक्स क्वाइट क्यूरियस भी दिखता है, फीलिंग ऑफ थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी फील होती है। एंड इन द सेम वे दिस बॉय इज लुकिंग राइट लाइक अ रेड्स आई, अंडरलाइन कर लो बेटा, विद रेड्स आई, ये मेटाफर है। इट सिम्बोलाइजेस फियर, उसको थोड़ा डर लग रहा है, आप फियर कह सकते हो। सिम्बोलाइजेस हंगर, कि वो इतना भूखा है, दैट मीन्स वो यहाँ वहाँ बड़ी ही अपनी आँखों से, तेज आँखों से बड़ा क्यूरियस होके वो क्या तलाश कर रहा है, ही सर्चिंग फूड,
तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ही इज़ फीलिंग हंग्री, हंगर, जैसे एक रैट जो भूखा होता है वो खाने के लिए यहाँ वहाँ देखता है, थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है। एंड इनफैक्ट द सेम वे ये जो लड़का क्लास में बैठा है जो कि दुबला पतला है और जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, ही इज़ फीलिंग हंग्री, वो यहाँ वहाँ देख रहा है, मतलब क्लास में उसका कोई ध्यान नहीं है, मतलब व्हाट द टीचर इज टीचिंग द क्लास इट हार्डली मैटर्स टू हिम। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा, ये जितने ही बच्चे बैठे हैं ना, दे आर माल नरिश्ड, अननरिश्ड। और यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर इनको जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ इनकी प्राइमरी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, इनर सोल इनका सेटिस्फाई नहीं होगा, सो हाउ वुड दे कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। विद रेड्स आई से आप ये भी कह सकते हो सर्चिंग, क्यूरियस, जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था ना वो वाला चैप्टर, दैट मीन्स द लॉस्ट स्प्रिंग, जहाँ पे जो रैक पिकर्स हैं, जैसे जो साहिब आलम है, जस्ट ही कीप ऑन वंडरिंग एंड जस्ट क्राउंजिंग द गार्बेज एंड देयर, मतलब ही सो क्यूरियस लुक एट द थिंग्स, मतलब उनकी नज़रें मतलब ना उसी चीज़ में जाती जो कि उसमें प्रोडक्ट्स उनको मिले उस गार्बेज में, उस डर्ट में। वैसे ही ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़का बैठा है, इसकी चूहे जैसी आंखें बता रखी है, ही क्यूरियस है, ही इज़ सर्चिंग समथिंग, ही इज़ हंग्री। आप किसी भी सेंस में इनका मीनिंग लिख सकते हो बेटा, मैंने आपको जिस सेंस में मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है लिटरेरी टर्म्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। द स्टंट, और एक और स्टूडेंट है जिसके बारे में कहा गया है द स्टंट, unlucky hair of twisted ones. Now the third student sitting in the class. अब now look at the word stunted. Stunt word क्या है? It means dwarf, जो गिट्ठा जो बोना होता है उसको कहा गया dwarf. और other way round you can आप लिख सकते हो not developed properly. Unlucky hair of twisted bonds. अब twisted bonds क्या होती है? मुड़ी हुई हड्डियाँ। अब कहा गया है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट और बैठा है क्लास में जो स्टंट है, जो कि देखने में मतलब क्या है, ड्वार्फ है, गिट्ठा है। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज। रिसाइटिंग क्या होता है? हम बोलते हैं रिसाइट करना, बोलना, रिपीट करना। देन अंडरलाइन द अदर वर्ड नाल डिजीज। नाल डिजीज़ को बोलोगे आप क्या बोलोगे, मीन्स जो गठिया की बीमारी होती है उसको कहा गया है नाल डिजीज़, जो कि ट्विस्टेड बोन्स की जो बीमारी को कहा गया नाल डिजीज़। क्लियर? अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। इसमें पॉइंट बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्लास में देयर इज अदर बॉय हु इज सिटिंग देयर, और आप यहाँ पे फिगरेटिव स्पीच लिख लो बेटा, आयरनी है। इसमें कहा गया है कि बॉय ही वॉज सिटिंग देयर, उसकी जो हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, उसको मतलब एक बीमारी है, किसकी, गठिया की बीमारी है। एंड ही गॉट दिस डिजीज़, ही रिसाइटिंग, वो रिसाइट कर रहा है। कई बार ऐसा था किसी लोगों के पास रिसाइट करने के लिए बहुत कुछ होता है कि उसके फादर ने उसको क्या दिया। अब यहाँ पर हेयर वर्ड है, हेयर होता है धरोहर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये लड़का बोल रहा है कि उसको हेयर मतलब अपने फादर से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ही गॉट दिस डिजीज़ फ्रॉम हिज फादर। और यहाँ पे एक्चुअली कई बार बच्चे बोलते हैं अरे मैम मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, अरे मैम इसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, इसके फादर मतलब सो इतने किले ज़मीन है, इसके इतने बिग्गे ज़मीन है, इतने फार्म हाउसेस हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है हेयर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कि भाई उसकी जो फादर की प्रॉपर्टी वो बेटे की है, तो मतलब उसको उसकी धरोहर में उसके फादर ने जो बोलते हैं ना पावर ऑटोनॉमी क्या है, मतलब अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिया, तो अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर ये बॉय बोल रहा है कि उसको उसके फादर से कुछ नहीं मिला, ही डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिज फादर। ना प्रॉपर्टी मिली है, ना हेल्थ मिली है, और ना ही मतलब यहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं, बिकॉज दे आर ड्वेल इन दिस रूरल एरिया, इन दिस स्लम एरिया, उस मडी एरिया में है जहाँ पे उनके लिए कोई स्कोप, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो बोल रहा है मुझे तो मेरे फादर से ही बीमारी मिली है। एंड नाल डिजीज़, हिज लेसन्स
फ्रॉम हिज डेस्क। सो स्टूडेंट्स, ये आयरनी है जहाँ पर बच्चा ये बोल रहा है दैट ही इज़ रिसाइटिंग हिज डिजीज दैट ही गॉट फ्रॉम हिज फादर। एंड डोंट यू नो, दिस इज़ अ ट्रेजिडी this boy just facing with, and he got this disease from his father. And now अगर सपोज मान लो इसके पास पैसे होते, अच्छी फैसिलिटीज़ होती, could be assessed, right, the medical facilities, if he would have a property, या जो उसके फादर के पास पैसे होते ओबियसली उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट कराते ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये उसकी ट्रेजिडी है। इनफैक्ट दे डोंट हैव द मनी, उनके पास खाने के लिए ही नहीं है, उनको डॉक्टर के पास ही खाने के लिए, तो कहाँ से पैसा आएगा। वो भी क्लास में बैठा है, इस लेसन्स अपना जो लेसन टीचर पढ़ा रहे हैं पार फ्रॉम हिज डेस्क, बुक्स खुली हुई हैं उसके डेस्क पे, एंड ही वाज रिसाइटिंग। वहीं पर क्लास में अब एक और स्टूडेंट बैठा है एट बैक ऑफ द डिम क्लास। उसी क्लास में स्टूडेंट्स अंडरलाइन करो वर्ड डिम, डिम क्लास कहा गया है। डिम मीन्स कलरलेस। कहा गया इस क्लास में कोई भी मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है, नो वन इज़ रीडिंग हियर। कोई उनमें एंथुजियाज्म नहीं है, कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं है, नो वन इज़ हैप्पी टू रीड, दे आर पेल, दे आर डल एंड दे आर लेस्ट्रेस। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। कहा वही क्लास में एक लड़का बैठा है, अननोटिस्ड है, अननोटेड होता है बेटा अननोटिस्ड, वेदर द बॉय इज अननोटिस्ड बाय द टीचर। और जो बच्चा जो क्लास में बैठा है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई टीचर क्या बोल रहे हैं, और ना ही टीचर उस पर ध्यान दे रहा है। ही इज टोटली अननोटिस्ड बाय द टीचर, एंड इवन ही इज ऑल्सो नॉट कंसिडरिंग एज द टीचर व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। अब ये जो बच्चा है बड़ा ही स्वीट है, यंग है। अब देखो बाकी बच्चों के कंपेरेटिवली ही डजंट हैव एनी डिजीज़, बता रखा बहुत ही स्वीट है, यंग है, ऐसा उसके बाद मतलब ये बता रखा है कि ही इज़ सिटिंग इन द क्लास, लेकिन ये भी नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ ऑल्सो नॉट स्टडिंग इन द क्लास। अब what he is doing in the class, let's see, his eyes live in a dream। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। कुछ बच्चे क्लास में बैठते हैं ना, बैठे तो हैं, येस मैम आई एम प्रेजेंट, आई एम लिसनिंग, और अब कभी कुछ उनसे कुछ क्वेश्चन कर दो, they couldn't able to answer. So what's the reason? Means they are physically present but they are mentally somewhere else, right? But here in this class also बच्चा बैठा है, बच्चा अपने ही सपने में, अपनी ही धुन में कहीं खोया हुआ है। he is absent minded in the class। यहाँ पे कह सकते हो बच्चा जो है absent minded है। you can say that the boy is mentally challenged and ignored in the dim class। आर इन द सेंस हमें स्टीफन स्पेंडर ये बोल रहे हैं दैट एजुकेशन हैज़ नॉट रीच्ड आउट टू द चिल्ड्रन। चाहे कोई भी रीज़न है, चाहे किसी को नाल डिजीज़ है, चाहे कोई ड्रीमिंग कर रहा है, चाहे कोई भूखा है, कोई रेड साइज है, कोई दुबला पतला लड़का जो क्लास में बैठा है, नो वन इज़ जस्ट गेटिंग एनी थिंग फ्रॉम द टीचर, नो वन इज़ रीडिंग हियर इन द क्लास। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, and what he's dreaming here, he's dreaming of the squirrels game। वो बाहर देख रहा है squirrels game, मतलब वो गिलहरी मतलब घूम रही है यहाँ वहाँ, मतलब वो उस गेम में बिजी है, उसको बड़े ध्यान से नोट कर रहा है। एंट्री रूम अदर देन दिस। अब सुनो बेटा, एंट्री रूम ध्यान से लाइन करो। एंट्री रूम मीन्स वेयर द स्क्वेरल वॉज रोमिंग अराउंड। एक वहाँ पे होल है और उस मतलब ट्री है, ट्री में होल है, और जहाँ पे जो स्क्वेरल है, स्क्वेरल का वहाँ पे जो मतलब वो एंटर करती है फिर बाहर निकलती है, इट इज़ अ ट्री रूम फॉर द स्क्वेरल। इन लिटरली टर्म वी कैन से दैट इन अ ट्री रूम मीन्स दिस सिग्निफाइज द फ्रीडम। हियर it signifies a freedom, that the points that the boy is thinking about the freedom। other than this मतलब एक्सेप्ट द लेसन के अलावा वो बच्चा बाहर देख रहा है, सपने देख रहा है, स्क्वेरल गेम्स के बारे में देख रहा है, दैट मीन्स। और सुनो बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख लो, ऑफ द स्क्वेरल गेम्स इन अ ट्री रूम, दैट मीन्स मैंने आपको क्या बोला था, दैट ही इज आई मीन इन द अर्ज ऑफ फ्रीडम एंड
In this we can say that here the nature, the importance has been given to the nature, where the trees there and the squirrel was just roaming around. So more and more importance here is given to the nature. Now let us move to the next paragraph. स्टूडेंट जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें एक्सप्लेन कर रखी है द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम. अब यहाँ पर बता रखा है, ये तो बच्चों के बारे में बताया जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, मतलब वो कैसे हैं, मतलब कैसे दिख रहे हैं, कैसा उनका फिजिकल अपीयरेंस है, हाउ दे आर सिटिंग द क्लास एंड हाउ दे आर लुकिंग. एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ इज रिगार्डिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम. एंड हियर ऑन सौर क्रीम वॉल्स. अब वहाँ पे क्लासरूम कैसी है, सौर क्रीम. सौर जैसे होता है ना कि नेगेटिव में बोलते जो मतलब अजीब सा खट्टापन जिसको सौर. एंड ऑन सौर क्रीम वॉल्स अंडरलाइन करो बेटा. यहाँ पर पोएट ने पन यूज़ किया गया है. पन क्या होता है, मतलब किसी भी वर्ड को, जैसे फॉर एग्जांपल दो मीनिंग जिसके निकले. क्रीम वॉल्स मतलब या तो जो वॉल्स है वॉल का जो कलर है वो क्रीम का है, सौर क्रीम वॉल्स. और कहा गया है जो वॉल्स जो हैं मतलब उनका कहीं से प्लास्टर उतरा हुआ है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, मतलब वो जो क्लास दे आर नॉट पेंटेड. और यहाँ पर बता रखा है क्लासरूम की जो कंडीशन है वो कैसी है बेटा, बहुत ही ख़राब है. एंड यहाँ पे जो क्लासरूम है कोई अच्छी वेल वेंटेड क्लासरूम नहीं है. इट जस्ट increase the and happiness of the children. प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वॉल्स ढंग से पेंटेड नहीं है. और जिस पन का एग्जाम्पल और दूँ आपको, जैसे ओरिजिनल कॉपी. ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल तो रियल होता है ना, कॉपी क्या होता है, फोटोस्टैट होता है ना. तो यहाँ पर किसी भी जो वर्ड होता है, किसी वर्ड का अगर जो डबल मीनिंग निकलता हो, टू मीनिंग, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे पन. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. डोनेशंस क्या होते हैं बेटा, डोनेशंस होता है किसी को गिफ्ट में देना. शेक्सपियर्स हेड. तो अब ये देखो बेटा उनकी जो क्लासरूम है, उनकी क्लासरूम में क्या क्या डोनेशंस, मतलब कोई भी स्लम एरिया है, कोई भी रिच पर्सन है, या कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, या कोई भी लगा लो रिच पर्सन है कि अरे स्लम एरिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं बच्चों को ही फ़ोटो दे देता हूँ. बच्चों को कोई फ़ोटो दे देते हैं या स्कूल को डोनेट कर देते हैं. और उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि डोनेट की गई हैं स्लम एरिया के बच्चों को. और वही इस पैराग्राफ में बता रखा है कि उनकी जो स्लम की जो क्लासरूम है उनमें कौन कौन सी पिक्चर्स पेस्ट थी, राइट, उस क्लासरूम के अंदर. और क्या ये जो पिक्चर्स वहाँ पे पेस्टेड हैं, क्या इट रियली सर्व्स एनी पर्पस टू दिस स्टूडेंट्स. क्या इन डोनेशन से बच्चों पे कोई इन्फ्लुएंस है, क्या बच्चों के लिए कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट सर्व कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन सौर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. वो जो दीवारें हैं बहुत ही फटी पुरानी है, प्लास्टर उतरा हुआ है जिनकी, हमें बहुत ही बेकार कंडीशन में है. उन दीवारों पे डोनेशंस पेस्टेड है. और क्या क्या है, शेक्सपियर्स हेड. शेक्सपियर्स हेड मतलब फोटो ऑफ अ शेक्सपियर. वहाँ पे शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं ना जैसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंसिडर किया जाता है, ग्रेट लिटरेरिस्ट. तो उनकी जो फ़ोटो है वो है उस क्लास के अंदर. फिर यहाँ पर बता रखा है और क्या क्या है स्टूडेंट्स की चीज़ की फ़ोटो है. क्लाउडलेस एट डॉन. एक क्लाउडलेस डॉन है, उसकी वहाँ पर फ़ोटो है. अब यहाँ देखो बेटा, अब इसमें बताया गया है कि ये जो पिक्चर्स जो वॉल पे हैंग की गई है, राइट, क्या है, शेक्सपियर की फ़ोटो है. एंड सेकंड
अब देखा जाए तो शेक्सपियर एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही जीनियस लिटरेचरिस्ट है, लेकिन वो इन बच्चों को क्या सर्व कर रहे हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, what these students they are getting from the photo of the Shakespeare. फिर नेक्स्ट इसमें बता रखा है, अदर पिक्चर्स हैं इसमें, क्लाउडलेस एट डॉन। अब सुनो बेटा, क्लाउडलेस डॉन का मतलब क्या है? ये क्लाउडलेस क्या होते हैं? क्लियर, विदाउट क्लाउड्स। क्लाउडलेस का मीनिंग क्लियर है। एट डॉन, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, डॉन और डस्क, डस्क बोलते हैं शाम को, डॉन बोलते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो कहा गया है इट इंक्लूड्स अ पिक्चर ऑफ अ क्लियर स्काई एट डॉन। एक उसकी फोटो है और एक है सिविलाइज्ड डूम। सिविलाइज्ड डूम मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें हैं सिविलाइज्ड, और यहाँ पे जो डोम है एक किस चीज़ का सिंबल शो करते हैं? एट द मैंस आर्किटेक्चर पोजिशन को शो किया गया है। दैट शोज अ डिस्टिंक्ट इल्यूजन फॉर दीज स्लम चिल्ड्रन। तो अब देखो बेटा क्या क्या फोटो है, क्या क्या डोनेशंस हैं वॉल पे। शेक्सपियर की हेड मतलब शेक्सपियर की फ़ोटो है, क्योंकि शेक्सपियर जो है बाल, BALD बाल मतलब गंजा, उनका सर जो है गंजा है और पीछे साइड में थोड़े बाल हैं उनके, वो फ़ोटो है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लियर स्काई एट डॉन की फ़ोटो है। देन राइडिंग ऑल सिटीज़, बेल्ड फ्लावरी, इट मीन्स दैट कि वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया जो वैली एक्सप्लेन बता रखी है उसकी एक फ़ोटो है, फ्लावरी वैली ऑफ ऑस्ट्रिया अलॉन्ग विद डूम ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन। अब ये सब चीज़ें हैं, क्लाउडलेस डॉन की फ़ोटो है, सिविलाइज डोम है, राइडिंग ऑल सिटीज़ जो मतलब पूरे शहर में पूरे मतलब शो कर रहा है उसको, मतलब डोम को। एंड बेल्ट, वैसे बेल्ट होता है जैसे म्यूज़िक बेल्ट को भी कहा जाता है बेल्ट, आप जो चर्चेस हैं उनको भी कहा गया है। फ्लावर्स, टायरोल्स वैली, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दे रिप्रेजेंट होप। लिख लो, ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं उस पिक्चर के अंदर? एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि होप पिक्चर के अंदर है, क्लास के अंदर नहीं है। होप है, इंजॉयमेंट है ऑफ नेचर्स ब्यूटी एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइज डोम क्या है? ये एक मतलब मैंने कहा ना एक आर्किटेक्चर को की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि वो रिच हैं, जेनरस हैं, बट इन रियलिटी दे आर कॉन्ट्ररी। ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी क्लासरूम उतनी ही बोर है, उतनी ही डल है। वो जो पिक्चर्स में डोनेशन में जो लाइफ बता रखी है वो कहीं दूर दूर तक इस क्लासरूम में कहीं भी नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है कि मतलब कैसी इमेज, कैसी फ़ोटो, कैसा आर्किटेक्चर, डोम, पूरी सिटीज़ हरी भरी फ्लावरी बेड्स, जो ऑस्ट्रिया की जो टायरोल्स वैली दिखा रखी है, लेकिन और ये क्या है? इस्लाम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी एरिया है, मतलब बस ये पिक्चर्स वहाँ पे पेश कर दी गई हैं। एंड द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स आर लिमिटेड टू द वर्ल्ड ऑफ देयर विंडोज। और यहाँ पे पता है ना बेटा, मैंने क्लाउडलेस एट डॉन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लाउड से मैंने कहा था क्लियर है फ़ोटो वहाँ पे, सब मतलब पिक्चर जो है क्लियर स्काई की पिक्चर है। तो यहाँ पर ये जो क्लियर पिक्चर जो स्काई है ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्लियर पोल्यूशन फ्री स्काई ऑफ वर्ल्ड इन नेचर्स लैब, इन कॉन्ट्रास्ट टू द सील लीड स्काई बाय द स्लम। वो यहाँ पर लाइफ दूर दूर तक नहीं है इस स्लम एरिया के बच्चों के अंदर। देन मूव टू द नेक्स्ट, टायरोल्स वैली फिर कहा गया है ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप मतलब द मैप, एक वर्ल्ड मैप वहाँ पर क्लास के अंदर लगा हुआ है। और ओपन हैंडेड मैप को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इट इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड मेड बाय द विल ऑफ द डिक्टेटर्स। वो ऐसा मैप है जो कि डिक्टेटर्स की विम्स और उनकी डिज़ायर से बनाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब सुनो बेटा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इट्स मीन दैट
द वर्ल्ड as fashioned by the conquerors, the world as created by the rich and the affluent and the powerful people. यह उन लोगों की दुनिया है जो कि उन लोगों के द्वारा क्रिएट की गई है. प्रॉस्पैरिटी है, हैप्पीनेस है, प्रोग्रेस है. वो एक ऐसा वर्ल्ड है. और फिर कहा गया है यहाँ पर, चलो अदर वे राउंड में मैं आपको समझाती हूँ बेटा. यहाँ पर दो वर्ल्ड डिस्कस किए गए हैं. ओपन हैंडेड मैप मतलब द मैप ऑफ द वर्ल्ड जो वहाँ पे क्लास में पेस्टेड है. और ये ओपन हैंडेड मैप किसने डिज़ाइन किया है? बाय द डिक्टेटर्स, बाय द रिच पर्सन्स, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे दो वर्ल्ड बता रखा है. एक वो वर्ल्ड जो कि उस मैप के अंदर बताया गया है, प्रॉस्पैरिटी है, प्रोग्रेस है, एफ्लुएंट पीपल हैं. और एक ये वर्ल्ड है, किसका वर्ल्ड है? द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रह रहे हैं, जिन लोगों के लिए प्रॉस्पैरिटी, प्रोग्रेस कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है. इन बच्चों के लिए कोई भी सिविलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है. जहाँ पे कोई भी नेचर्स के लैब में बच्चे नहीं खेल रहे हैं. ये तो बस एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर बंद है. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़. अब यहाँ पे कहा गया है इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़ मतलब वो जो लाइफ उसमें दिखा रखी है, मैप में दिखा रखी है. और कैसी लाइफ है? एफ्लुएंट लाइफ, लाइफ ऑफ प्रॉस्पेरिटी. दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप. कहा उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, जो सब कुछ उनके पास है, जैसे फ्लावरी बेड है, टायरोल्स वैली है, और वहाँ पे ये सिविलाइज्ड रूम है. वो चीज़ें इन बच्चों के लिए वो मैप इनकी दुनिया नहीं है. वो जो मैप में दिखा रखा है वो उन लोगों के लिए कहीं दूर दूर तक नहीं है. आप इस स्टेटमेंट को एक बहुत इजी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि देयर फ्यूचर इज़ फॉगी. देखो उस मैप में बहुत अच्छी लाइफ दिखा रखी है. डिक्टेटर्स जो हैं, प्रॉस्परस जो हैं, जो कि एफ्लुएंट लोग हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी वर्ल्ड डिज़ाइन किया. दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ द रिच पर्सन्स. दो वर्ल्ड है. रिच पर्सन्स का अपना वर्ल्ड है, उनका अपना लाइफ स्टाइल है. लेकिन यहाँ दूसरा वर्ल्ड जो रियलिटी में जो वर्ल्ड है स्लम एरिया, दूसरा वर्ल्ड स्लम एरिया के बच्चों का है, जहाँ पे वो बच्चे बैठे हैं. उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है. उन लोगों के पास तो खाने के लिए भी नहीं है. उन लोगों के लिए ये नेचर स्लैब का भी सुख नहीं है. तो वो चीज़ें सिर्फ मैप के अंदर देख रहे हैं, जो उनको दिखाया गया है, जो वो देख रहे हैं, जो फ़ोटो वहाँ लगी हुई है. अब दूसरी बात देखो, बिकॉज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं देयर फ्यूचर इज़ फॉगी है, क्लियर नहीं है, कोई होप नहीं है, अनसर्टेन है, डल एंड ब्लीक है. ब्लीक मतलब ब्लैक. कोई होप, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इन बच्चों के पास जो कि स्लम एरिया में बैठे हैं. दे आर कन्फाइंड टू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम इनक्लोज बाय द पॉल्यूटेड स्काई. कॉन्ट्रास्ट दिया गया है यहाँ पे. इन द कॉन्ट्रास्ट द वर्ल्ड दैट इज डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स. क्या बोल रही हूँ मैं? जो क्लासरूम वॉल्स के ऊपर जो मैप बता रखा है, आर जस्ट अ वर्ल्ड चिल्ड्रन कैन एस्पायर और ड्रीम बट कांट अचीव. कहने का मतलब ये है वो इस वर्ल्ड को देख सकते हैं, वो उस वर्ल्ड को देख करके थोड़ा से उत्साहित हो सकते हैं, उनको एस्पायर कर सकते हैं, बट लेकिन वो लाइफस्टाइल, वो वर्ल्ड इनकी विंडो नहीं हो सकती. वो वर्ल्ड इनका लाइफस्टाइल नहीं हो सकता. इनको वो उस तरीके से वो जी नहीं सकते हैं. और मोर ओवर ये कह सकते हो कि बस ये तो उन लोगों को एक तरह से टेम्प्ट कर रहे हैं. उन लोगों के लिए एक फ्रस्ट्रेशन है जो यहाँ पे इनको दी गई है, क्योंकि यहाँ पर उस लाइफ को देखे, उस वर्ल्ड को देख करके वो दुखी होंगे. मीन्स द मैप ऑफ द क्लास इज ओनली टू इंक्रीज देयर फ्रस्ट्रेशन. फॉर दीज डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एक वो वर्ल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा सस्टेबल है, एडवांस्ड है, और एक वो वर्ल्ड है जो कि डिप्राइव्ड बच्चों का है, जो कि उस वर्ल्ड को कभी अचीव ही नहीं कर सकते हैं. एक वर्ल्ड में एडवेंचर बता रखा है, एक वो ऐसा एडवेंचर वाइडनिंग एंड ब्रॉडनिंग हॉराइजन,
और एक ये वर्ल्ड है, इन बच्चों का स्लम है, जो कि जहाँ पे बच्चे जो हैं दे आर सील्ड इन ए नैरो लेन्स वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, पेंटेड विद अ फॉग, ये मेटाफर है। यहाँ पे कहा गया है ये जो बच्चे बैठे हैं इन बच्चों का जो फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, मतलब उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पूरा उनकी लाइफ में कोई होप नहीं है, ब्लीक है, अननोन वर्ल्ड है, ड्रेरी वर्ल्ड है उनका। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, अंडरलाइन करो, विद अ लीड स्काई, ये मेटाफर है। कहा गया है ये नैरो स्ट्रीट, वैसे हम बोलते हैं नैरो स्ट्रीट क्या होता है, एक छोटी सी गली, नैरो मतलब सकड़ी सी गली, सील्ड जिसको बंद कर दिया गया है, विद अ लीड स्काई, लीड होता है ब्लैक स्काई। अभी देखो अब यहाँ पे कैसे इसको लिटरली वे में बोलोगे, नैरो स्ट्रीट सील मतलब है एंड ऑफ ऑल होप्स, इन बच्चों की कोई भी होप नहीं है, एंड इट मीन्स दैट नो अपॉर्चुनिटीज फॉर दी चिल्ड्रन, कोई इनका स्कोप नहीं है, and all their scope and their life they are just sealed in a lead sky, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है इनकी ज़िंदगी में, उजाला कहीं दूर दूर तक नहीं है इन बच्चों की लाइफ में, जो कि स्लम में, इस टैरोल्स वैली की जो स्लम क्लास में बच्चे बैठे हैं। और ये बच्चे कहा गया फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस लाइन को देखो बेटा, एफ एफ फार फार बहुत दूर है, कहा इन बच्चों की जो लाइफ है या इन बच्चों के लिए समुद्र का देखना, केव्स का देखना, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ है ये चीज़ें इन बच्चों की दुनिया से बहुत परे है, बहुत परे चीज़ है, ये लोग कभी ख्वाब में भी चीज़ें नहीं देख सकते हैं। एफ एफ एलिट्रेशन है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो दैट दे आर देयर ड्रीम्स, दे आर इवन बीइंग एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द नेचर्स लैब। अंडरलाइन कर लो, ये लाइन लिख लो बेशक से आप, जो नेचर लैब जो सबको भगवान सबको प्रोवाइड करता है, इन बच्चों के लिए तो इन नेचर जो लैब का भी सुख नहीं है, दे आर फार अवे फ्रॉम दीज रिवर्स केव्स। क्या होते हैं, जैसे सी के समुद्र के किनारे कोई जैसे आइलैंड होता है, तो वहाँ पे उन केव्स के स्टार ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर स्टार ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है नॉलेज, वो इस नॉलेज से स्टार ऑफ वर्ल्ड से कहीं बहुत बहुत दूर हैं, मीन्स देयर ऑल फ्यूचर इज पेंटेड इन डार्क। और इन लोगों के लिए कहीं भी कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कहीं इनका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एजुकेशन है, नॉलेज है, तभी तो बच्चे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, प्रॉस्पर करेगा। जब इनके पास नॉलेज ही नहीं है, कि नॉलेज इनको दी जा रही है लेकिन कि जो प्राइमरी जो बेसिक नीड्स हैं वही फुलफिल नहीं है, सो हाउ दे वुड क्रिएट देयर फ्यूचर, how they would increase their knowledge. So my dear students, this is all about for today's class. मैंने आपको 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन किए बेटा, आपको मीनिंग्स, फिगरेटिव स्पीच आपको मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ पे। अब मैं सिर्फ मैंने 2 पैराग्राफ इसलिए एक्सप्लेन किए कि मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा बड़े ध्यान से पढ़े। स्टिल फिर भी बेटा अगर आप को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी, एंड बेस्ड ऑन दीज 2 पैराग्राफ्स आई जस्ट प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस। आप बैठिए आराम से, इसको ध्यान से पढ़िए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए, एंड टुमारो आई जस्ट डिस्कस द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ दिस पोइट्री। सो देखो आज मैंने आपको क्या बताया बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि how the children who are sitting in the classroom, how they are physically appear in the classroom, how they are looking, right, how they looked, their physical appearance कैसा है, जो कुछ बच्चे बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं,
नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको क्लासरूम के बारे में बताया है, उनकी क्लासरूम्स कैसी है, पेल है, फेडेड हैं, पेंटेड नहीं है, कहीं से प्लास्टर उतरा हुआ है, ऐसी टूटी फूटी क्लासेस हैं। फिर देन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इसमें क्या क्या डोनेशंस हैं, डोनेशंस में जो लोग उनको गिफ्ट देते, जो रिच पर्सनस ने वहाँ पे स्लम एरिया में गिफ्ट दिए, कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, शेक्सपियर हेड है, क्लाउडलेस डॉन है, सिविलाइज्ड रूम है, बेल फ्लावरी है, टारोल्स वैली है, फिर एक वर्ल्ड मैप है, फिर यहाँ पे दो वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया गया है, वर्ल्ड ऑफ द रिच पीपल एंड द वर्ल्ड ऑफ द पुअर और द स्लम लोगों का वर्ल्ड किया गया। ये कॉन्ट्रास्ट है दोनों के दोनों, क्योंकि इन लोगों की, इन बच्चों के लिए रिच पर्सनस वाला वर्ल्ड वो कभी अचीव ही नहीं कर सकते, वो लाइफ स्टाइल वो कभी उनको मिल ही नहीं सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू ऑल will read and go through these two paragraphs. Thank you very much.